क्वेश्चन 1 करें एमसीक्यू, ज्यादा नहीं है। Section 14 of the Customs Act 1962 provides valuation for import of goods, export of goods, both A and B. It prescribes for relevant date for rate of duty and valuation of goods. सी होगा ना। सेक्शन 14 में इंपोर्ट ऑफ गुड्स का वैल्यूएशन और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दोनों का वैल्यूएशन है। कैसे गलती कर दिया, मुझे तो नहीं लगा था। मुझे जब ये क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत ही बेकार क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। आपके जवाब से ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा किया बना दिया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए। उसके बाद ये जो रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स किस डेट को देखेंगे, वो सेक्शन 15 में है और 16 में है, हाँ या ना। फॉरेन एक्सचेंज किस दिन का देखेंगे, वो कहां लिखा हुआ है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज किस दिन का देखेंगे, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है। बाकी लोग जवाब दे दें। वो सेक्शन 14 में ही लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल होगी या शिपिंग बिल जिस दिन फाइल होगा उस दिन का रेट देखेंगे। लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन सेक्शन 15 या सेक्शन 16 में देखेंगे। यस और नो। चलिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड एज असेसेबल वैल्यू इफ which of the following conditions should be satisfied? Goods are sold, yes or no? Price is the sole consideration. Buyer and seller are not related. All of the above. Correct. Value of import of goods shall be done at the place of importation. True or false? Valuation of export of goods shall be done at the place of exportation. True. Both true. Factory is located in Delhi. Shipping bill is filed mentioning the place of exportation as Mumbai port. Transportation cost from Delhi to Mumbai is a part of value of export. True. Freight and insurance incurred beyond custom station of Mumbai is part of value of export. False. Examine the following. Board by notification in the official gazette can fix tariff value for export goods only. False. Export import दोनों goods के लिए fix कर सकता है. Central government by notification in the official gazette can fix tariff value for imported goods. This is also false. सेंट्रल गवर्नमेंट कभी फिक्स नहीं करता, जब भी फिक्स करेगा बोर्ड फिक्स करेगा. बोथ फॉल्स. आपको दिखलाता हूं, छोटा सा पॉइंट था, हमने इसको हाईलाइट कर दिया. नथिंग कंटेन दिस इफ द बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स कैसे करेगा, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. इंपोर्ट ड्यूटी इज लेवाइड ऑन CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. Export duty or export incentive is allowed on FOB value of export goods. True. Good. Whether following charges are part of import value, FOB value of goods, selling commission, royalties as a condition for import of goods. Yes, all of the above. Which of the following charges not part of import value? Buying commission, cost of containers, both A, B, cost of packing. Not part, not part. C. Examine the following. FOB price 10,000, selling commission not included but charged from importer 2,000. Cost of transport is not ascertainable at the time of filing of bill of entry. Cost of insurance 50. What is the FOB value of at the place of importation?
12050। बाकी लोग डी आएगा करेक्ट। अपर्णा जी एक्सपर्ट हो गई वैल्यूएशन में। देखिए 12 प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉट असर्टेनेबल है तो 20%, 2400 प्लस 50, 14450, 10। CIF value of imported goods is 10,000. Compute accessible value. देखिए provided further that, no, I have not done anything. देखिए आप provided further that where the free on board value of goods is not ascertainable. और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? CIF वैल्यू दिया हुआ था, but the sum of free on board of the value of goods and the cost referred to in this is ascertainable. यानी कि CIF वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे केस में 20% ऑफ सच सम यानी कि 20% ऑफ CIF लेंगे। और सिमिलरली 1.125% ऑफ CIF लेंगे। हाँ या ना? CIF इज आफ्टर इंक्लूजन, आई एग्री। लेकिन हमने इस लाइन का मतलब पहले भी समझा था कि अगर CIF वैल्यू दिया हुआ है और FOB वैल्यू और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस अलग से नहीं दिया हुआ है तो CIF वैल्यू का 20%, CIF वैल्यू का 1.125% ऐड करना पड़ेगा। अपर्णा जी सेइंग नो। बाकी लोग रिवर्स कैलकुलेशन करके दिखला दीजिए आप मुझे। रिवर्स कैलकुलेशन तो तब होगा व्हेन यू नो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्चुअल इंश्योरेंस। यू कैन नॉट डू द रिवर्स कैलकुलेशन अज्यूमिंग 20%। FOB तो पूछ ही नहीं रहा है वो। लेकिन लॉ पढ़ते हैं हम लोग। इट इज बेटर टू रीड लॉ अगेन एंड अगेन देन टू अप्लाई कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज ए गुड थिंग बट लॉ देखिए 20% ऑफ सच सम मतलब क्या ऐड करने के लिए कह रहा है? ये CIF वैल्यू का ही तो 20% कह रहा है ये। हाँ या ना? इससे एक बात तो निश्चित है, अगर ऐसा कैलकुलेशन है तो whenever you import goods always go for FOB contract। always go for FOB contract। yes or no? अमित जी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। आज कार्तिक आया नहीं, कार्तिक के पास भी था। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो है ये वाला पोर्शन, चलिए मैंने पहले ही बोला था ये रिस्की क्वेश्चन है। अगर CIF वैल्यू दिया क्वेश्चन, अच्छा यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 10 हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 जहां पर CIF वैल्यू दिया हुआ और FOB वैल्यू और उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो ऑब्वियसली अपर्णा वाज नॉट एग्रीइंग, लेकिन दिस इज द लॉ। तो अगर आप और रिसर्च कीजिए, कुछ मिले तो बताइएगा मुझे। Examine the following statement. Value of export of mold supplied by buyer free of charge is फिर कैसे आ गया? इसको तो मैंने डिलीट। is part of value of import goods if it is used in connection with the production and sale for export of imported goods to India. True or false?
जल्दी बताइए। तो इंडिया से मोल्ड गया, मोल्ड से गुड्स बना, ये गुड्स इंपोर्ट हो रहा है। तो ये मोल्ड की वैल्यू पे, मोल्ड की जो भी वैल्यू है, क्या वो गुड्स की वैल्यू में ऐड होके इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा? तो कहानी है यस, ट्रू। या तो आप फर्स्ट कंसाइनमेंट में ही ऐड कर दीजिए, या लास्ट का, और या फिर यूनिफॉर्म बेसिस पे आप ऐड करते जाइए जितनी मोल्ड की कैपेसिटी है। Engineering, development, artwork, design work, and plans and sketches undertaken in India and necessary for the production of the imported goods is part of import value. False. तो आंसर है ट्रू और फॉल्स ए। Royalties and license fee related to the imported goods that the buyer is required to pay directly or indirectly as a condition for the sale of the goods being valued is subjected to IGST when part of accessible value and again subjected to IGST separately. True or false? फॉल्स है, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स है, फॉल्स। एग्जाम्पशन है ना, इसका एग्जाम्पशन है। Ocean freight is subjected to double duty of IGST, once when included in accessible value of imported goods and again subjected to IGST separately. True or false? True. False to the answer. मैंने आपको रीजनिंग क्या बताई थी? ये सेम पार्टी, दो पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस पार्टी से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो वही पार्टी आपको नॉलेज दे रही है। यहां पर तीन पार्टी आपको नजर आ रही है, वन एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और शिपिंग लाइन। तो यहां एग्जाम्पशन नहीं है, जिस तरह से सेलिंग कमीशन में तीन पार्टी है, एग्जाम्पशन नहीं है। सही बात है या नहीं है? चलिए, तो ये हो गया। अब